Hello and welcome to everyone present here. Students, today we will begin the new topic, the revolutionaries, under the chapter, the rise of nationalism in Europe. Europe में राष्ट्रवाद का उदय. But prior to discussing this topic, let me recap of the earlier topics. You already know that first of all we had discussed about the meaning of nationalism in Europe, and then we have also discussed about the difference between nation states and nationalism. Then we had also discussed about the painting of Friedrich Schiller, in which he has visualized the dream of his world made up of social and democratic republic. Then we had discussed about that first time the idea of nation emerged during French Revolution, and what sort of steps were taken by the French revolutionaries to create the sense of common identity. Then we had discussed about the Napoleonic Code of 1804 along with its some shortcomings. Then we had discussed about the making of nationalism in Europe, that how did the idea of nationalism started to take its expansion in Europe. And we in this discussion we had also discussed about Europe was a patchwork of different regions and dialects. It was an area of multinational dynastic empire, and there were three categories of people living in the society: the aristocracy, the middle class educated society, and the peasants. And it was the middle class educated society where the first time the idea of nationalism emerged, and it was known as the liberal nationalism. And what was the meaning of liberal nationalism? That they were in favor of democratic form of government based on constitution and parliament, but they were not in favor of voting rights to all. Then this liberalism idea were also concerned with the economic sphere, and here we had also discussed many things. Then we had also discussed about the conservatives, that who were conservatives. The governments in Europe were driven by the spirit of conservatism after 1815, after Vienna Conference. And they were very much autocratic in nature, and they curbed all the activities of the liberal nationalism. But they had one idea, new idea, that modern army, efficient bureaucracy, and abolition of serfdom and feudalism may strengthen the monarchy. And we had also discussed about the Vienna Conference. What was the meaning of Vienna Conference? And it was organized by the Chancellor of Austria, D.U. Metternich. And here many decisions were taken, and it was the prominent decision of establishing of the monarchical governments once again in Europe, and even in France. The Bourbon dynasty was brought back. Now it is time to discuss about revolutionaries. क्रांतिकारी कौन थे? तो we see that different situation is taking place in Europe. यूरोप में अलग अलग तरह की बातें चल रही थी, और फ्रांस की क्रांति हो गई, नेशन का आइडिया मिल गया, फिर नेपोलियन का भी मतलब कोड हम लोग देख लिए कि नेपोलियन कोड में क्या क्या बातें थी. फिर उसके बाद बात आगे बढ़ती है और नेपोलियन 1815 में हार जाता है जब, और चार महाशक्तियां रसिया, प्रसिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन मिलकर उसको हरा देते हैं. तो एक बार फिर से यूरोप में कंजर्वेटिव्स गवर्नमेंट की स्थापना हो जाती है. फिर से मोनार्की लौट आता है यूरोप में, और वो लोग कंजर्वेटिव्स थे, वो मतलब काफ़ी निरंकुश थे, और लिबरल नेशनलिस्ट जो लोग की लिबर्टी और इक्वलिटी की बात करने वाले लोग थे, मिडिल क्लास एजुकेटेड पीपल, उनकी सारे एक्टिविटीज़ को ये लोगों ने, कंजर्वेटिव गवर्नमेंट्स ने कुचल दिया. वियना कॉन्फ्रेंस के बाद इसी तरह की गवर्नमेंट यूरोप में आ गई थी, और फ्रांस में भी बर्बन डायनेस्टी को पुनः वापस लाया गया था वियना कॉन्फ्रेंस के डिसीजन के अनुसार. और फ्रांस के सीमाओं पर छोटे बड़े राज्य भी कायम कर दिए गए थे, और मोनार्कियल गवर्नमेंट जो थे वो अपनी निंदा बर्दाश्त नहीं करते थे. प्रेस की आज़ादी पर उन्होंने बिल्कुल पाबंदी लगा दी थी. अब ऐसी स्थिति में लिबरल नेशनलिस्ट आइडिया वाले लोग आखिर अपने कार्यों को कैसे जारी रखें, कैसे राष्ट्र राज्य की स्थापना के प्रयासों को आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए अब उन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज़ की स्थापना शुरू कर दी, और वो रिवॉल्यूशनरीज कहलाएं, क्रांतिकारी कहलाएं. तो वो कौन थे, देखते हैं. द रिवॉल्यूशनरीज आफ्टर 1815. After 1815, the fear of repression drove many liberal nationalists underground. तो जो
कंजर्वेटिव गवर्नमेंट्स जो यूरोप में 1815 के बाद आ चुकी थी वो काफ़ी मतलब ऑटोक्रेटिक थी और वो किसी भी तरह के लिबरल नेशनलिस्ट आइडिया को मानने वाले लोगों को कुचल देती थी। तो उसके भय से, उसके डर से बहुत सारे लिबरल नेशनलिस्ट जो थे अंडरग्राउंड हो गए, छुप गए। Secret societies were set up in many European states to train revolutionaries to spread their ideas. अब मतलब अब दिन के उजाले में तो ये काम नहीं कर सकते थे, तो सीक्रेट सोसाइटीज, क्योंकि कंजर्वेटिव गवर्नमेंट्स का टर्म रहता था, तो मतलब सीक्रेट सोसाइटीज बनाई गई, मतलब कि गुप्त संगठन बनाए गए और छुप छुप के काम होने लगा कि राजा की नज़र में ना आए, कंजर्वेटिव गवर्नमेंट्स की नज़र में ना आए, और रिवोल्यूशनरीज को ट्रेनिंग दी जाने लगी कि भाई हमें नेशनलिज्म की आइडिया को आगे बढ़ाना है, नेशन स्टेट की स्थापना करना है। तो रिवोल्यूशनरीज आखिर थे कौन? Revolutionaries at this time meant a commitment to oppose the monarchical form of government established after Vienna Conference. तो वियना कॉन्फ्रेंस के बाद जितने भी monarchical form of government की स्थापना हुई थी उसके विरोध करने वाले को ही रिवॉल्यूशनरीज कहते थे। To fight for liberty and freedom, जो जनता की स्वतंत्रता और उसकी मतलब लिबर्टी की बात करता था, उसी को रिवॉल्यूशनरीज कहते थे। Their ultimate aim was to establish nation state, और इनका अंतिम उद्देश्य होता था राष्ट्र राज्य की स्थापना। तो चूंकि अब सीक्रेट सोसाइटी बनाकर रिवॉल्यूशनरी लोगों ने काम कर दिया, तो टू बी रिवॉल्यूशनरी एट दैट टाइम कमिटमेंट टू अपोज द मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड आफ्टर वियना कॉन्फ्रेंस। तो कोई पूछेगा रिवॉल्यूशनरीज कौन थे, क्रांतिकारी कौन थे? तो क्रांतिकारी वही लोग थे जो वियना कॉन्फ्रेंस के बाद कंजर्वेटिव गवर्नमेंट्स की स्थापना हुई थी उसके विरोधी थे, उसका विरोध करने वाले थे। वे लोगों के लिबर्टी और फ्रीडम के लिए लड़ाई कर रहे थे और उनका अंतिम उद्देश्य था नेशन स्टेट्स की स्थापना। अब इसी तरह के क्रांतिकारी हैं जिसेपे मज़ीनी। तो जिसेपे मज़ीनी, क्रांतिकारी तो बहुत सारे हुए होंगे लेकिन जिसेपे मज़ीनी का नाम ज़्यादा होता है, तो इनके बारे में भी कभी कभी लिखने के लिए आता है कि राइट अबाउट जिसेपे मज़ीनी, his contribution. So Mazzini was an Italian revolutionary. तो मज़ीनी साहब जो थे वो इटली के क्रांतिकारी थे। He was born in Geneva in 1807. उनका जो जन्म हुआ था 1807 में हुआ था जिनेवा में। फाउंडेड 2 सीक्रेट सोसाइटीज, उन्होंने 2 गुप्त संगठन बनाया था। 1815 में देखिए कंजर्वेटिव गवर्नमेंट्स आई थी और 1807 में मतलब उनका जन्म हुआ, मतलब आसपास में वही जन्म हुआ। तो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट्स जो यूरोप में चल रहे थे तो उसी समय इनका जन्म भी हुआ था और उन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, एक यंग इटली मार्सिले में और एक यंग यूरोप बर्न में। ही ऑल्सो वाज एन मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी कार्बोनरी। वह एक कार्बोनरी सीक्रेट सोसाइटी के भी सदस्य रह चुके थे जिनका निर्माण उन्होंने खुद नहीं किया था, अपना दम पर उन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, यंग इटली एंड यंग यूरोप, यंग इटली इन मार्सिले एंड यंग यूरोप इन बर्न। At the age of 24, he was sent to exile in 1831 for attempting a revolutionary in Liguria. तो वो काफ़ी क्रांतिकारी विचार के थे, कंजर्वेटिव गवर्नमेंट्स के बिल्कुल वो मतलब डेड अगेंस्ट थे और 24 साल की उम्र में ही उन्होंने मतलब क्रांति किया था 1831 साल में, और उसके लिए उन्हें देश निकाला भी मिला था। He said, उनका क्या कहना था इटली के बारे में? इटली के तो थे वो क्रांतिकारी। He said, God has made nation to be a natural unit of mankind, so Italy could not be continued to be a patchwork of various kingdom. उनका कहना था कि मनुष्य की बात तो छोड़ दीजिए, ईश्वर ने ही नेशन जो है, नेशन है वो मनुष्यों के लिए एक प्राकृतिक इकाई बनाई है। मतलब नेशन की स्थापना होना, नेशन होना, ये एक नेचुरल है, मनी यूनिट्स है, ये प्राकृतिक इकाई है जिससे कि गॉड ने ही प्रस्तुत किया है मनुष्य जाति के लिए कि लोग नेशन के रूप में रहे। और मैं तो इटली को इतने छोटे छोटे टुकड़ों में, राज्यों में देखना पसंद नहीं कर सकता हूँ। आई कांट बियर टू सी द इटली डिवाइडेड इनटू सो मेनी किंगडम्स। इटली उस समय 7 राज्यों में बटा हुआ था और उसको देखकर ये काफी मतलब दुखी रहते थे और कहते थे कि गॉड हैज मेड द नेशन टू बी अ नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। और इसके बारे में ऑस्ट्रिया का ड्यूक मैटरनिक क्या कहता था? मैटरनिक डिस्क्राइब मज़ीनी एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट्स के लिए, रूढ़िवादी सरकारों के लिए मैटरनिक मज़ीनी को कहता था कि ये समाज के सबसे बड़े मतलब दुश्मन है, कंजर्वेटिव गवर्नमेंट्स के सबसे बड़े दुश्मन हैं मज़ीनी साहब। और मैटरनिक एक और बात कहता था, व्हेन फ्रांस स्नीजेस यूरोप कैच कोल्ड। जब भी फ्रांस छिकता है यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है। मतलब कोई भी क्रांति पहले फ्रांस से ही शुरू होती है।
नाउ जब रिवॉल्यूशनरीज लोग आ गए हैं तो एज ऑफ रिवॉल्यूशन भी यूरोप में आ गया, क्रांतियों का दौर भी आ गया। और ये क्रांतियों का दौर जो है 1830 से 1848 के बीच में। तो 1830 से 1848 के बीच में 4 इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स होते हैं और इसी का नाम पड़ा है एज ऑफ रिवॉल्यूशंस। पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे जुलाई रिवॉल्यूशन ऑफ फ्रांस, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो कि 1821 में शुरू होता है। उसके बाद हम लोग एक नई तरह के नेशनलिज्म बिल्डअप करने का आइडिया देखेंगे जिसका नाम रोमानेटिज्म पड़ता है। फिर फ्रांस में क्रांति होती है 1848 की, और फिर एक जर्मन भाषी क्षेत्र जो कि 39 स्टेट्स का कन्फेडरेशन था, जर्मनी तो देश था नहीं, वहाँ पर लिबरल नेशनलिस्ट लोगों के द्वारा, मिडिल क्लास लोगों के द्वारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाने का, एक नेशन स्टेट बनाने का प्रयास होता है, जो कि लास्टली सेना उसको मतलब डिसॉल्व कर देती है, मतलब वहाँ का राजा उसको मतलब कुचल देता है। तो 4 इंसिडेंट हम लोग पढ़ेंगे। इसमें 2 इंसिडेंट फ्रांस में होते हैं, जुलाई रिवॉल्यूशन ऑफ 1830 एंड रिवॉल्यूशन ऑफ 1848, ये दोनों फ्रांस में हो गए। एक पढ़ेंगे हम लोग ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस, और एक पढ़ेंगे हम लोग रोमानेटिज्म, और एक हम लोग पढ़ेंगे लास्ट में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। तो नाउ लेट अस सी, just after concluding the revolutionaries, now we come to the topic, the age of revolution। यूरोप में अब क्रांतियों का दौर आ गया। फर्स्ट रिवॉल्यूशन इन फ्रांस इज आल्सो नोन एज जुलाई रिवॉल्यूशन। तो सबसे पहले 1830 में फ्रांस में एक जुलाई रिवॉल्यूशन आया। द बर्बन किंग वेयर ओवरथ्रोन बाय लिबरल लिबरल्स। तो बर्बन जो किंग कंजर्वेटिव गवर्नमेंट जो इसकी स्थापना की थी 1815 में वियना कॉन्फ्रेंस में, वो ज़्यादा दिन चली नहीं। 1830 में फिर लिबरल नेशनलिस्ट लोगों ने, लिबरल रिवॉल्यूशनरीज लोगों ने उसे उखाड़ फेंका और मतलब उसे हटा दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वाज इंस्टॉल विद लुई फिलिप एट इट्स हेड। और फ्रांस में फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गया और लुई फिलिप इसका हेड बना। तो 1830 में जुलाई रिवॉल्यूशन हुआ। 1815 में फ्रांस में बर्बन डायनेस्टी वियना कॉन्फ्रेंस के बाद लागू मतलब कंजर्वेटिव गवर्नमेंट्स की स्थापना हुई थी, जिसको लिबरल रिवॉल्यूशनरीज लोगों ने 1830 जुलाई में हटा दिया और फ्रांस में लुई फिलिप्स एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का हेड बना। This sparked revolution in Brussels, separating it from the United Kingdom of Netherlands। तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से ब्रसल्स भी अलग हो गया। Thus Metternich remarks when France sneezes, the rest of Europe catches cold। तो यहीं पर मैटरनिक ने कहा कि जब भी फ्रांस छिंकता है तब यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है। It means whenever any incident, any revolution takes place in France, it have its impact on Europe as well। So the first revolution we come to know about, July Revolution. It talks about the end of the Bourbon dynasty in France and by liberal revolutionaries and establishment of constitutional monarchy, Louis Philippe being his head। Then Greek War of Independence। अब ये ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस क्या है? द ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस जानने से पहले आपको जानना, ग्रीक एक देश है और यूरोप का ये मतलब जो सभ्यता थी, यूरोपियन सिविलाइजेशन सबसे पहले यहीं पर मतलब फली फूली थी, यहीं से ये आगे बढ़ी थी। और जो भी आज हम लोग देखते हैं ग्रीक वर्ड तो बहुत रिच सिविलाइजेशन थी ये एंशिएंट मतलब हिस्ट्री में। तो ग्रीक जो था वो ऑटोमन एम्पायर्स का 15th सेंचुरी से उसका मतलब हिस्सा बन गया। तो ऑटोमन एम्पायर जो था वो तुर्की के अंतर्गत था और तुर्की एक मुस्लिम मतलब कंट्री था, मुस्लिम साम्राज्य उसका हेड था, मुस्लिम साम्राज्य का मतलब राजा उसका था, सुल्तान था। तो तुर्की के अंदर में ये ग्रीक था 15th सेंचुरी से, ऑटोमन एम्पायर उसको कहते थे। द ग्रोथ ऑफ रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्क ऑफ द ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1821। तो ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू कब होता है? 1821 में, जब यूरोप में रिवॉल्यूशनरीज आइडिया फैलने लगी, रोमांटिसिज्म का आइडिया फैलने लगी, तो ग्रीक के लोगों भी नहीं सोचा कि हमें अब एक मुस्लिम साम्राज्य के अंदर नहीं रहना है और उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई शुरू कर दी 1821 में। नेशनलिस्ट इन ग्रीक गॉट सपोर्ट फ्रॉम मेनी ग्रीक्स इन एग्जाइल एंड वेस्ट यूरोप बिकॉज दे कंसीडर ग्रीक एज द क्राइडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। तो ग्रीक में जब ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हुआ तो उनको सपोर्ट भी मिला वेस्टर्न यूरोप में रहने वाले बहुत सारे ग्रीक जिनको देश निकाला हो गया था। तो वेस्टर्न यूरोप में रहने वाले बहुत सारे ग्रीक जो देश निकाले निर्वासित लोग ग्रीक थे, उनसे सपोर्ट मिला और वेस्ट यूरोप से भी मिला। और क्योंकि लोगों की ऐसी मान्यता थी यूरोपियन लोगों को कि जो ग्रीक है इट इज द बर्थ प्लेस ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, इट इज द क्राइडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। यूरोपीय सभ्यता का ये पालना रहा है, ये बर्थ प्लेस रहा है और इसे गुलामी में नहीं रहना चाहिए।
and you may see here how enthusiastic and how emotionally attached with the Greek War of Independence. An English poet, Lord Byron, went to fight but died with fever in 1820. तो इंग्लैंड के कवि थे, इंग्लिश के बहुत बड़े पोएट थे लॉर्ड बायरन, वो भी ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस में लड़ाई करने गए थे, और लेकिन वो 1824 में फीवर से उनकी मृत्यु हो गई थी. फाइनली द ट्रीटी ऑफ कंस्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज ग्रीक एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट. तो 1832 में ट्रीटी ऑफ कंस्टेंटिनोपल हुआ और जिसके तहत ग्रीक को एक इंडिपेंडेंट देश की मान्यता दे दी गई. तो 1830 में हम देखते हैं जुलाई रेवोल्यूशन हुआ फ्रांस में, और वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई, लुई फिलिप हेड बना. फिर 1821 में ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो शुरू हुआ था वो 1832 में जाकर खत्म हुआ, जब ट्रीटी ऑफ कंस्टेंटिनोपल के तहत ग्रीक को एक स्वतंत्र देश की मतलब पहचान दी गई. देन रोमानेटिसिज्म, रूमानीवाद, ये क्या है और इसका क्या मतलब है यूरोपियन नेशनलिज्म में, इसका क्या तात्पर्य है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, हम लोग देखते हैं. रोमानेटिज्म was a cultural movement to install a nationalist sentiment among the people through art, poetry, music, dance and language. देखिए, नेशनलिज्म की जो भावना थी वो तो बहुत जरूरी थी, क्योंकि जब तक लोगों में नेशनलिज्म की भावना नहीं आती तब तक वो नेशन स्टेट बनाने के लिए प्रयास नहीं करते, वो मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर में ही रह जाते. और नेशनलिज्म की भावना पैदा करने के लिए लोगों में कॉमन आइडेंटिटी भी की जाती थी, और लोगों को मतलब युद्ध लड़ने और मतलब ये भी बतलाया जाता था कि मतलब भाई आप एक अपना नेशन बनाइए. नेशनलिज्म की भावना मतलब लाने के लिए युद्ध और तर्क वितर्क, ये साइंस का सब सहारा लिया जाता था. लेकिन कुछ लोगों का विचार था कि नेशनलिज्म की भावना जो है ना, युद्ध और तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडन से नहीं होगा. लोगों में नेशनलिज्म की भावना मतलब वहाँ पर लोगों में कला, संस्कृति, डांस, म्यूजिक, संगीत, भाषा के सहारे भी पैदा किया जा सकता है. लोगों में अपने देश के प्रति प्रेम वहाँ के कला, संस्कृति, संगीत, नृत्य और भाषा के माध्यम से भी पैदा किया जा सकता है. रोमांटिज्म मतलब कि जैसे रोमांटिक जब पीपुल कहते हैं ना रोमांटिक एक्टिविटी करने लगे, व्हेन टू पर्सन्स आर इन loving each other, what they think, they don't want to see anybody in trouble and any harm to anybody in any form. तो जब भी रोमांटिज्म होता है, जो मतलब जिसका जो रियल मीनिंग है, तो उसमें लोग क्या देखते हैं कि एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते हैं, एक दूसरे को कोई हानि या एक दूसरे का कोई मतलब किसी तरह की पीड़ा बर्दाश्त नहीं करते. उनमें जो एक मतलब इमोशनली अटैचमेंट होती है. तो क्या वही तरह का लव एंड अफेक्शन एंड केयर देश के प्रति भी पैदा किया जा सकता है? यस, इट इज पॉसिबल. और इसमें सहारा किसका लिया जाएगा? कल्चर का, संस्कृति का. संस्कृति आखिर किससे मिलके बनती है? तो संस्कृति होती है वहाँ के संगीत में, संस्कृति वहाँ के कविता, कवि, भाषा, साहित्य. संस्कृति तो बहुत बड़ा ब्रॉड मीनिंग है, लेकिन ये भी एक पार्ट आर्ट है, पोएट्री, म्यूजिक, डांस, इट इज आल्सो पार्ट ऑफ कल्चर. तो रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट्स जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस एंड फोकस्ड ऑन इमोशंस, इंस्टीट्यूशंस एंड मिस्टिकल फीलिंग. तो जो रोमांटिक कलाकार थे, जो लोगों में नेशनलिज्म की भावना मतलब संस्कृति के माध्यम से, और संस्कृति में मतलब कला, संगीत, नृत्य, भाषा, इसके आधार पर लोगों में नेशनलिज्म की भावना भरना चाहते थे. उन्होंने क्या कहा कि लोगों की भावनाओं पर बल दिया, लोगों के अंतर्दृष्टि पर बल दिया, लोगों के रहस्यमयी विचारों पर बल दिया. मतलब कि जो चीज हमें आंख से नहीं दिखाई दे रहा है, आध्यात्मिक चीजों पर भी जोर दिया कि जिसको मतलब हम देख भी नहीं सकते हैं लेकिन उस पर विश्वास करना है. तो लोगों के भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यमयी विचारों पर जोर देके रोमांटिक कलाकारों ने लोगों में नेशनलिज्म की भावना को भरने का मतलब प्रयास किया. This effort was to create a shared collective heritage, a common cultural past as the basis of nation. उनका मानना था कि नेशन का आधार किसको बनाया जाए. नेशन का आधार मतलब शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, माने जो उनका अतीत है, जो साझा अतीत है, जो लोग ग्रुप ऑफ पीपुल है, वो ग्रुप ऑफ पीपुल का अतीत साझा होना चाहिए, उनके पूर्वज एक होना चाहिए, और उनकी संस्कृति जो होना चाहिए पास्ट में. तो पास्ट में जो उनके पूर्वज थे और जो उसकी संस्कृति थी, उसी के आधार पर नेशन बनाया जाए. नेशन का आधार उन्होंने कॉमन कल्चरल हेरिटेज एंड पास्ट को बनाया.
तो सांस्कृतिक विरासत को उन्होंने नेशन का आधार बनाया और उन्होंने विज्ञान और तर्क वितर्क का विरोध किया और उसकी जगह पर लोगों की भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यमयी विचारों पर जोर दिया और इसके आधार पर नेशनलिज्म को बढ़ाया गया। तो इट वाज ए कल्चरल मूवमेंट टू इंस्टॉल द नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट अमंग द पीपल थ्रू आर्ट, पोएट्री, म्यूजिक, डांस। तो सिंपली आप डेफिनेशन का लिख सकते हैं कि इट वाज अ कल्चरल मूवमेंट टू इंस्टॉल अ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट अमंग द पीपल थ्रू आर्ट, पोएट्री, म्यूजिक, डांस एंड लैंग्वेज, एंड द रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट्स जनरली क्रिटिसाइज द glorification of reason and science and gave thrust on the emotion, institution and mystical feeling. They also made the common cultural heritage a common past of the basis of nation. अब इसमें कुछ एग्जाम्पल्स भी हम देखते हैं कि किस तरह से ये सफल भी हुआ और यूरोप में कहाँ कहाँ इसका यूज हुआ, ये कल्चरल मूवमेंट का, ये साइंस, डांस, म्यूजिक और लैंग्वेज के सहारे कहाँ कहाँ नेशनलिज्म की भावना फैलाई गई। तो देखिए, सबसे पहले जर्मनी में द जर्मन फिलोसफर जोहान गॉटफ्रीड क्लेम जर्मन कल्चर वाज टू बी डिस्कवर्ड अमॉन्ग द कॉमन पीपल। तो जर्मन जो था वो तो देश 1871 तक बना नहीं था और जर्मन 39 राज्यों का महासंघ होता था और जर्मन स्पीकिंग पीपल लोग रहते थे। तो वहाँ एक फिलोसफर हुए जोहान गॉटरफील्ड, उनका कहना था कि अगर जर्मनी की सच्ची संस्कृति को खोजना है, जर्मन नेशन को कहीं खोजना है, तो वो साधारण जनता में मिलेगी, वहाँ के लोगों में नेशन बसती है, जिसको उन्होंने जर्मन भाषा में दास वोल्क कहा। कॉमन पीपल को उन्होंने दास वोल्क कहा। तो true German culture was to be discovered among common people. So he popularized poetry, folk song, folk dance among the people to create a nationalist sentiment. इसलिए उन्होंने नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को बढ़ावा देने के लिए लोक संगीत, लोक नृत्य और लोक कविताओं पर जोर दिया। He popularized folk poetry, folk song and folk dance among the people to create the nationalist sentiment. अब एक पोलैंड में देखते हैं कलाकार थे कैरोल Kropinski. Karol Kropinski celebrated the national struggle through music, concert and opera. तो कैरोल क्रोस्पिंस्की, देखिए पोलैंड जो था ना 18वीं शताब्दी के अंत में पोलैंड देश नाम का देश नहीं बचा था। रसिया, ऑस्ट्रिया लोगों ने इन्हें आपस में बांट लिया था। तो रसिया, ऑस्ट्रिया, प्रसिया मिलकर इसको बांट लिया था, ज़्यादा भाग पर रसिया को था। तो पोलैंड देश तो बचा नहीं, लेकिन पोलैंड देश के नागरिक तो बच गए थे और नागरिकों के बीच में संस्कृति तो बची हुई थी। तो अब पोलैंड देश को जिंदा रखने के लिए कैरोल कर्पिस्की ने क्या किया कि नेशनल स्ट्रगल को जिंदा रखने के लिए संगीत का, कंसर्ट का, ओपेरा का संगीत सहारा लिया। फोक डांस फॉर्म्स लाइक Polynesia and Mazurika became a symbol of nationalist sentiment. तो पोलैंड देश को जिंदा रहने के लिए वहाँ कोरेल जो कोरपिंस्की थे, उन्होंने वहाँ की एक लोक नृत्य मजूरिका और एक लोक नृत्य पोलिनेशिया, ये दो लोक नृत्य थे, पोलिनेशिया और मजूरिका, ये वहाँ के राष्ट्रीय प्रतीक के चिन्ह बन गए, सिंबल ऑफ नेशनल, लोगों के राष्ट्रीय भावनाओं के प्रतीक बन गए। तो पोलैंड राष्ट्र को जिंदा रखा जा रहा था कैरोल कर्पिस्की के द्वारा और उसमें ने संगीत, म्यूजिक और ओपेरा का हेल्प लिया और फिर दो मतलब फॉर्म जो फोक डांस का था पोलिनेशिया और मजूरिका, उसका यूज किया। और क्योंकि पोलैंड तो देश सब बचा नहीं था, रसिया पर उसका कब्जा ज़्यादा से अधिकांश भागों पर था। लैंग्वेज का भी सहारा लिया पोलैंड देश को जिंदा रखने के लिए। विद द रशियन ऑक्यूपेशन ऑफ पोलैंड लैंग्वेज वाज बैंड। अब जैसे पोलैंड पर रसिया का कब्जा हुआ तो सारे स्कूलों में पोलिश भाषा को बैन कर दिया गया और रशियन लैंग्वेज को लागू कर दिया गया। बट मेनी पीपल ऑफ पोलैंड लाइक द क्लर्जीज यूज द पोलिश एज ए वीपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस। लेकिन बहुत सारे मतलब जो पोलैंड के निवासी थे, जिसमें पादरी वर्ग के जो थे विशेषकर, वो अपने राष्ट्र को जिंदा रखने के लिए, राष्ट्र की पहचान को जिंदा रखने के लिए अपने धार्मिक कार्यों में, चर्चों में पोलिश लैंग्वेज का यूज करते थे। पोलिश लैंग्वेज वाज यूज्ड टू for church and social gathering or religious instruction. As a result of a large number of people were sent to jail or Siberia as a punishment. तो चूंकि अब रसिया का कब्जा भी हो गया था अधिकांश भागों पर पोलैंड के, तो उसने तो सभी स्कूल में लागू कर दिया रशियन लैंग्वेज, लेकिन वहाँ के चर्च
में पुजारियों ने, पादरियों ने चर्च के धार्मिक अनुष्ठानों में या चर्च या कहीं सामाजिक मतलब गैदरिंग होती थी तो वो या कोई धार्मिक अनुष्ठान होता था तो वहाँ पर वो पोलिश लैंग्वेज को यूज करते थे। और जब रशियन लोगों की बात मालूम चली तो उन्होंने बहुत सारे पादरियों को जेल भी दे दिया और साइबेरिया भी भेज दिया। So we come to know that Romanticism was a cultural movement to install the nationalist feeling among the people through art, poetry, music, and dance and language. And they, romantic artists, criticize the glorification of reason and science, and give thrust on the emotion, institution, and mystical feeling of the people. And they made the collective heritage, shared collective heritage, and a common culture of the basis of nation. नाउ हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। तो अब देखिए यूरोप में एक नया दौर आता है, आर्थिक कठिनाइयों का दौर आता है। और ये आर्थिक कठिनाइयों का दौर क्यों आ गया, आखिर यूरोप में क्या समस्या आ गई कि मतलब गरीब लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम्स हो गए, बेरोजगारी फैल गई, लोगों को जीना मतलब काफ़ी कष्टमय हो गया। तो इसी का नाम पड़ा हंगर, भुखमरी की स्थिति आ गई। हार्डशिप, कठिनाई, भुखमरी और कठिनाइयों और मतलब कुछ पॉपुलर रिवोल्ट, कुछ मतलब विख्यात विद्रोह भी हुए। तो वो क्या हुए देखते हैं। द 1830 were years of great economic hardship in यूरोप। तो 1830 का जो समय था यूरोप में एक बहुत बड़ा आर्थिक कठिनाई का दौर लेकर आया। इनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन, कारण क्या थे, यूरोप की जनसंख्या बहुत बढ़ गई। लार्ज स्केल रूरल माइग्रेशन टू सिटीज लेड टू ओवर क्राउडेड सिटीज एंड रिड्यूस जॉब अपॉर्चुनिटीज। अब ग्रामीण क्षेत्रों से बहुत बड़ी जनसंख्या नौकरी की खोज में शहरों में आ गई और शहरों में बहुत जनसंख्या बढ़ गई और मतलब वहाँ पर स्लम एरिया बढ़ गए। वहाँ पर मतलब गंदी बस्तियों में, बहुत झुग्गी झोपड़ियों में बहुत लोग रहने लगे। ओवर क्राउडेड हो गया टाउन और देयर वेयर लार्ज नंबर ऑफ पीपुल जॉब सीकर देन द अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स। और जितने लोगों को जॉब चाहिए उससे ज़्यादा जॉब चाहने वाले लोगों की जनसंख्या हो गई। पीजेंस बर्डन विथ फ्यूडलिज्म, किसान भी जो थे वो सामंतशाही मतलब प्रथा के तले दबे हुए थे। स्टीप कंपटीशन बिटवीन मैन मेड गुड्स एंड चीप मशीन्स मेड गुड्स ड्यू टू इंडस्ट्रियल। अब इंग्लैंड में मतलब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू हो चुका था। अब मशीन मेड जो सामानें थी ईजी होती थी, चीप होती थी, तो छोटे स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर को भी प्रॉब्लम्स लगा। बैड हार्वेस्ट एंड राइज इन फूड प्राइसेस, तो कभी कभी फसल बर्बाद हो जाती थी तो खाने पीने की चीज़ें काफ़ी बढ़ जाती थी। सो इन दिस वे दैट देयर वेयर मल्टीपल रीजन्स फॉर द existence of hunger and hardship in Europe. The first was there was huge increase in population, and the large number of population from rural area migrated to the town and cities in search of jobs, and the availability of jobs were very minimum, and the town became overcrowded. Some area increased, and peasants were also not good condition. They were earning the feudal dues, and there was also a small producer facing competition due to machine made cheap items from the industry. And sometime bad harvest used to create high prices of the food item. So that was the situation of hunger and hardship in Europe. So then what was the result? Revolt, विद्रोह हुआ। The year 1848 was such year, अब इसी तरह का एक साल था 1848। Food shortage and widespread unemployment brought the population of Paris out on roads, and Louis Philippe was forced to flee, and France was declared a republic, and all males above 21 years of age were given right to vote and guaranteed the right of vote. तो देखिए 1848 में फिर फ्रांस में क्रांति हो गई। मतलब मैटरनिक तो सही कहता था कि यहाँ पर जब भी फ्रांस छिकता है यूरोप को सर्दी जुकाम होती है। तो हम देखते हैं कि 1830 में वहाँ पर कंजर्वेटिव गवर्नमेंट्स आ गई थी। फिर 1830 में मतलब 1815 में कंजर्वेटिव गवर्नमेंट आ गई थी। 1830 में फिर वहाँ पर लुई फिलिप हेड बने थे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हुई थी, एक क्रांति जुलाई रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। फिर हंगर हार्डशिप के बाद यूरोप का जब हंगर और हार्डशिप का दौर आया यूरोप में, तो 1848 में फिर फ्रांस में क्रांति हुई और इस बार लुई फिलिप को गद्दी छोड़ के जाना पड़ा और फ्रांस पूर्णतः रिपब्लिक बन गया। और 21 साल से उम्र के सभी लोगों को, माने सभी लोगों नहीं, पुरुषों को वोटिंग राइट्स मिल गया। तो 1848 में फ्रांस एक रिपब्लिक कंट्री बन गया। उसके बाद
रिवोल्ट ऑफ वीवर्स इन सिलेसिया, तो सिलेसिया में अब जुलाहों ने भी एक विद्रोह किया। हंगर हार्डशिप का दौर चल ही रहा था। द पीपल्स ऑक्यूपेशन इन सिलेसिया वाज मोस्टली ऑफ पीपिंग, तो सिलेसिया जो एक मतलब क्षेत्र था, जगह था, वहाँ पर बहुत से अधिकांश लोग जुलाहे ही रहते थे। दे गॉट द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर्स फॉर मेकिंग फिनिश गुड, तो उनको माने कॉन्ट्रैक्टर्स लोग उनको कच्चा माल देते थे कपड़ा बुनने के लिए। बट ऑन रिटर्न दे वर गेटिंग लेस वेजेस एंड दे फेयर प्रोटेस्ट, तो अब जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनको बहुत कम दामों पर कपड़ा खरीदते थे और उनसे बहुत काम लेते थे, मजदूरी कम देते थे। ऑन 4 जून 1845 ए क्राउड ऑफ वीवर्स अटैक ऑन द रेजिडेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स, ब्रोक द विंडो पैन्स एंड प्लंडर द क्लॉथ्स, तो 4 जून 1845 को जुलाहों की एक भीड़ मतलब कॉन्ट्रैक्टर्सों के घर पर धावा बोल देती है, उनकी खिड़कियां वगैरह तोड़ देती है, उनके क्लॉथ्स को भी मतलब लूट लेती है। In fear, the contractors fled away, but after 24 hours again returned with a regiment of army and killed 11 of the weavers. तो भी एक घटना हुई थी कि इसमें बाद में वो जो बड़ा कॉन्ट्रैक्टर था गांव छोड़कर भागता है, लेकिन बाद में आर्मी के साथ लौटता है और फिर 11 वीवर्स मारे जाते हैं। तो ये एक छोटी मोटी, ये भी एक क्रांति विद्रोह जैसा मतलब था। द रिवोल्ट ऑफ सिसिलिया 1845। The revolts of liberals, that is known as the Frankfurt Parliament. It is very important one. So the age of revolution in Europe is considered to be in between 1830 to 1848. तो जो क्रांतियों का दौर आया यूरोप में, रिवॉल्यूशनरीज आने के बाद क्रांतियों का दौर आया। फर्स्ट वी स्टडी अबाउट रिवॉल्यूशनरीज, that who were revolutionaries, then we understood also about important revolutionaries Giuseppe Mazzini, and now it is time to what was time to understand about the age of revolution. And first of all we understood about the July Revolution of France, then we studied about Great War of Independence, then we studied the Romanticism, then we studied about the hunger hardship, and once again there was a revolution in France in 1848 and France became the republic. And now it is time to understand a revolution in area of German speaking German Confederation. And what is this? It is also known as Frankfurt Parliament. So let us see. Parallel to the revolts of poor, unemployed and starving peasants, a revolution led by educated middle class was underway. तो हंगर हार्डशिप 1830 में यूरोप में आ गया था और उनका विद्रोह हुआ था फ्रांस में। 1848 में लुई फिलिप को गद्दी छोड़ के भागना पड़ा था और सिसिलिया में जुलाहों ने भी विद्रोह किया था। तो पुअर का भी एक गरीब लोगों का, अनएम्प्लॉयड लोगों का विद्रोह चल ही रहा था। तो मिडिल क्लास एजुकेटेड सोसाइटी भी उस विद्रोह में शामिल हुए और मतलब इन्होंने जर्मनी में उन्होंने एक मतलब प्रयास किया अपना वहाँ के राजतंत्र को हटाने का। फ्रांस बिकेम रिपब्लिक इन 1848 बट स्टिल अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप आर नॉट इंडिपेंडेंट नेसेसरी। तो फ्रांस तो 1448 में मतलब रिपब्लिक बन गया, लेकिन यूरोप में अभी भी बहुत सारे नेशन स्टेट नहीं थे 1848 तक। जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर अभी नेशन स्टेट नहीं बने थे। और यहाँ के जो लिबरल मिडिल क्लास पीपुल थे, इन्होंने नेशन स्टेट बनाने का प्रयास किया कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर और पार्लियामेंट्री सिस्टम के आधार पर। तो अब 1848 तक केवल फ्रांस ही नेशन स्टेट बन पाया था और जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी अभी नहीं बने थे। तो यहाँ के जो लिबरल मिडिल क्लास पीपुल थे, उन्होंने नेशन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल बेस्ड पार्लियामेंट गवर्न कॉन्स्टिट्यूशनल बेस्ड नेशन स्टेट बनाने का प्रयास किया। तो मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स लाइक शॉपकीपर, लॉयर, बिजनेसमैन डिमांडेड ऑन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। तो मिडिल क्लास जो मतलब पीपुल थे जर्मनी में, जर्मनी स्पीकिंग रीजन में, उन्होंने जिसमें कि माने लॉयर्स भी आते थे, डॉक्टर भी आते थे, बिजनेसमैन भी आते थे, शॉपकीपर्स भी आते थे, उसने ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के निर्माण की बात की। दे केम together in the city of Frankfurt and decided to vote for all German National Assembly। तो वो फ्रैंकफर्ट शहर में इकट्ठा हुए और ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के लिए उन्होंने वोटिंग किया। सो द मिडिल क्लास लिबरलिस्ट पीपुल including doctor, engineer, lawyer, shopkeepers and businessmen demanded a all German National Assembly, and for this purpose they gathered in the Frankfurt city and voted for all German National Assembly। तो 1848 में हुआ क्या कि जर्मन के जो मिडिल क्लास एजुकेटेड सोसाइटी थी, जिसमें कि लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, शॉपकीपर्स, बिजनेसमैन आते थे, उन्होंने ऑल जर्मन नेशनल असेंबली का डिमांड किया और उसके लिए फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में इकट्ठा भी हो गए और ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के लिए वोटिंग भी कर दिया।
and so they assembled themselves in Frankfurt Parliament on 18 May 1848 with 831 रिप्रेजेंटेटिव, और 831 रिप्रेजेंटेटिव को उन्होंने चुन भी लिया, और 18 मई 1848 को मतलब वे एक सजे धजे जुलूस में फ्रैंकफर्ट में इकट्ठा हुए। दे ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जर्मन नेशन सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट। उन्होंने जर्मनी के लिए एक मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया, और जो कि पार्लियामेंट के द्वारा गवर्न होने वाली थी। When they offered the crown to Frederick William IV under the above terms, he denied and joined with the other monarchs to reject it। तो जब मतलब 831 प्रतिनिधि जो ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के लिए चुने गए थे 18 मई 1848 को, वो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जमा हुए, जो संत पॉल चर्च में बुलाई गई थी, और वहाँ उन्होंने ड्राफ्टिंग किया कॉन्स्टिट्यूशन का। और वहाँ मतलब राजा जो थे प्रशिया के नेतृत्व में, उनके प्रशिया के राजा मतलब जो थे फेडरिक विलियम IV को वो संविधान प्रस्तुत किया कि इस पर साइन कर दीजिए और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाने दीजिए। लेकिन राजा तो इसे एक्सेप्ट करेगा नहीं। राजा ने मतलब इसको डिनाई कर दिया और दूसरे राजा की सहायता से इसको कुचलने का प्रयास किया। And the parliament was dominated by the middle class who resisted the demands of workers and artisans। तो पार्लियामेंट को एक तरह से जो मिडिल क्लास लोगों का बना हुआ था, मिडिल क्लास एजुकेटेड सोसाइटी का, तो इनको दो तरह से सपोर्ट नहीं मिला। एक तो एरिस्टोक्रेसी का इनका सपोर्ट नहीं मिला, और जो बड़े बड़े जमींदार होते थे जिनको जंकर कहा जाता था, उनको से भी सपोर्ट नहीं मिला। तो अपर साइड से दो साइड सपोर्टर नहीं मिला, और लोअर साइड से भी इनको वर्कर और आर्टिसंस का भी सपोर्ट नहीं मिला। राजा तो पहले से ही विरोध में था। तो द पार्लियामेंट लॉस्ट द सपोर्ट ऑफ एरिस्टोक्रेट एंड जंकर्स, बिग लैंडलॉर्ड्स, एज वेल एज सपोर्ट ऑफ द लोअर strata of the people, worker and artisan, and at the end the troops was called by the king and the assembly was forced to disband। तो इस तरह से जो मिडिल क्लास एजुकेटेड की जो पार्लियामेंट बनी थी, वो पार्लियामेंट ध्वस्त हो गई। वो पार्लियामेंट मतलब उसको डिसबैंड कर दिया गया राजा की सेना की सहायता से, राजा के द्वारा, क्योंकि एक तरफ मुझे एरिस्टोक्रेट का सपोर्ट नहीं मिला और दूसरी तरफ उसे वर्कर और आर्टिसन का भी सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि वर्कर और आर्टिसन का इन्होंने विरोध कर दिया था मिडिल क्लास एजुकेटेड सोसाइटी ने। सो व्हाट डू वी कम टू नो दैट टिल 1848 Germany, Italy, Poland, Austria, Hungary were still empire, and in this situation the middle class educated people in Germany demanded for all German National Assembly, and they voted for it, and they chosen 831 representative, and on 18th May 1848 they assembled in the city of Frankfurt in St. Paul Church and drafted a constitution and produced before the king for his signature, but the king opposed it and took hold of the other monarchy. The parliament was consisted of middle class educated society. They one hand they had no support of aristocrat, and another hand, since they had opposed the demand of the workers and artisans, they also lost their supports, and lastly the king called the army and dissolved the parliament. This is also known as Frankfurt Parliament. This was the first effort by the middle class educated society in Germany to form a nation state। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में मिडिल क्लास एजुकेटेड सोसाइटी के जर्मन लोगों ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की प्रशिया के नेतृत्व में, वहाँ के फेडरिक विलियम IV के नेतृत्व में बनाने का प्रयास किया था, जिसको राजा ने धूमिल कर दिया था, क्योंकि मिडिल क्लास एजुकेटेड सोसाइटी जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में व्यक्ति थे, 831 व्यक्ति चुनकर जो आए थे, इनको आर्टिसंस और कारीगरों का सपोर्ट नहीं मिला और एरिस्टोक्रेसी का भी सपोर्ट नहीं मिला, और सेना की सहायता से राजा ने इसे डिसॉल्व कर दिया। सो हियर यू सी द फ्रैंकफर्ट असेंबली 1848। सो एंड द इशू ऑफ वोमेन, महिलाओं का क्या स्थिति थी यूरोप में। द ग्रांटिंग और इशूइंग ऑफ पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन वाज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो महिलाएं शुरू से ही क्रांतियों में मतलब भाग लेती थी, राजनीतिक रूप से सक्रिय रहती थी, लेकिन उनको कोई वोटिंग राइट्स नहीं मिलता था। वुमेन हैड टू पार्टिसिपेट एक्टिव इन डिफरेंट मूवमेंट्स, बहुत सारे मूवमेंट्स में महिलाओं ने भी भाग लिया था। दे फॉर्म देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स, फाउंडेड मैगजीन्स, पार्टिसिपेटेड इन मीटिंग्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस। उन्होंने बहुत सारे अपने पॉलिटिकल क्लब बनाए, मैगजीन्स निकाले, पार्टिसिपेट किए, but they were not given the voting rights,
Even 1848, France became the republic. Women were not given the voting rights. You should remember it. When the Frankfurt Parliament convened, women were admitted only observers. जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हुआ था तो वहां भी महिलाएं केवल एक दर्शक तिरंगा में गेस्ट की तरह खड़ी थी. So in this way we studied today topics that who were revolutionaries. Then we studied about the Giuseppe Mazzini, a revolutionary. Then we studied about the age of revolution in between 1830 to 1848, and here we discussed about July Revolution of 1830. Then we discussed about Greek War of Independence. Then we studied a unique way of spreading nationalism, that is Romanticism. And then hunger and hardship era came in Europe in 1830 due to rise in population and unemployment, and that a result of first revolt in France in 1848. Louis Philippe had to abdicate the throne, and the France became a republic. And then there was a revolt in by weavers in Sicilia, and lastly we see the middle class educated people efforts for a nation state establishment in Germany, and that is known as the Frankfurt Parliament. So I hope you might have got few ideas, and now we will try to study unification of Germany and unification of Italy in next video lesson, and unification of Great Britain. Then the chapter will be over. Okay, to all of you.